Hello and welcome to the next class of neutron diffraction, and in this class we will start the point where we stopped yesterday. And as in yesterday's class we were learning about scattering of neutrons by solids and the liquids. So yesterday we have seen what type of neutrons are, and whatever these neutrons are there, these neutrons are not interacting with your positively charged nucleus, that is nothing but protons, and the whatever these neutrons are there, these neutrons cannot also interact with your electrons, and this can be explained, or this is in accordance with the law of inverse action. With what law of inverse, sorry, not action, it's squares. So this we can explain by simply law of inverse squares. Then after, whatever the interactions will be there, that interactions will be completely because of the short range order, because of the short range order. And whatever this short range order interaction, whatever this short range order interactions are there, these will give to the collisions. And whatever these collisions are there, these collisions can be of two type: elastic collision and the inelastic collision. And whatever this in elastic and inelastic collision is there, these elastic and inelastic collisions can be giving rise to the two types of changes. So elastic collision is giving us simply the energy transformation, complete energy transformation will be there. And whatever this transformation is there, energy transformation is there, it will give you simply from, if lighter nuclei is there, then whatever that lighter nuclei is there, then whatever your nuclei is there, that nuclei will reduce appreciably for the fast your neutrons. And then after, you have inelastic collisions. Inelastic collision can be about two types, that is it can have the two changes, that can be like, first change will be like in total a partial change, and second one change will be total change. In partial change, you can have or you can note it down, simply the internal changes are there. Because of scattering of these nucleus, there is the possibility to have the internal changes in your nuclei, whatever the nuclei is there on which you are bombarding your scattered nucleus, sorry, neutrons. And whatever these neutrons are scattering, and these neutrons, when they are scattering, at that time internal changes are there. And when what is the ultimate change when your these internal changes are there, excited state में जाते हैं आपके वो जो भी nuclei होते हैं, ground state to excited state. It means that they can have higher energy before the transformation. And then second change is the total change, and in total change of your inelastic collision, you can have the changes, that is nothing but real transformation is takes place. And after this, we have seen the examples for inelastic scattering. The very first one example was related with simply magnesium, and very second one example is related with the iron. So whatever this magnesium and iron are there, these magnesium and iron can give you simply the two types of these are the two types of examples. And as everybody of you knows very well, simply whatever these changes are there, these changes can have simply the magnetization of iron. देखिए, अब जब भी आप आयरन पर बम्बार्ड करोगे, क्या करोगे आप? जब भी आयरन पर बम्बार्ड करोगे आपके न्यूट्रॉन्स, क्या बम्बार्ड करोगे? न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड करोगे आपके आयरन पे। तो आयरन पे न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड करने के बाद में क्या होगा? व्हेन यू आर बम्बार्डिंग दिस न्यूट्रॉन्स ऑनटू आयरन, एट दैट टाइम मॅग्नेटायझेशन ऑफ आयर्न, मॅग्नेटायझेशन मतलब क्या? आयर्न मध्ये मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी असते. इन आयर्न देर इज अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, आई मीन टू से जो कुछ भी आयर्न रहता है, मतलब की अपना लोहा म्हणजे की लोखंड जे काही असतं त्याच्यामध्ये मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी असते. लाईक त्याच्यामध्ये जी काही मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी असते, फेरोमॅग्नेटिक म्हणू शकता तुम्ही, किंवा मॅग्नेटिक म्हणा, सरळ सरळ अजून त्याला डिस्टिंग्विश करू नका. तर मग ही जी काही मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी किंवा मॅग्नेटायझेशन प्रॉपर्टी असते, ती मॅग्नेटायझेशन प्रॉपर्टी जेव्हा तुम्ही
बंबाड करता तुमचे न्यूट्रॉन्स, at that time this magnetization property is getting काय decreased by किती percent? 10%. And this can be decreased by 10% to the saturation. And ये क्या शो करता है? ये क्या शो करता है कि आपके ये जो कुछ भी न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो ये न्यूट्रॉन्स को एक मैग्नेटिक मोमेंट रहता है. दिस इज एक्सप्लेनिंग द magnetic movement. There is a magnetic movement. There is a magnetic movement to your neutrons. This is explained by when these neutrons, listen very very carefully, ये जो कुछ भी न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो ये न्यूट्रॉन्स आपके आयन पर जब आप बम्बार्ड करते हो, स्कैटरिंग करते हो इनकी, तब क्या होता है कि आपके ये न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड करने के बाद में उसका मैग्नेटाइजेशन 10% से डिक्रीज होता है. और ये प्रूव करता है कि ये जो कुछ भी आपके आयन है, इसका ये जो कुछ भी मॅग्नेटायझेशन प्रॉपर्टी आहे, म्हणजेच त्याचं आयर्नची जी काही प्रॉपर्टी आहे, मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी आहे, मॅग्नेटायझेशन प्रॉपर्टी म्हणतो आपण त्याला. तर लिटरेचरमध्ये तुम्हाला मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीला मॅग्नेटायझेशन असा वर्ड मिळेल. अँड वॉट एव्हर दिस प्रॉपर्टी इज दियर, दिस प्रॉपर्टी इज गेटिंग डिक्रीज्ड. काय म्हटलं मी? डिक्रीज्ड बाय किती पर्सेंट? 10%. अँड दिस इज शोविंग, हे काय प्रूव्ह करते? हे 10% जेव्हा डिक्रीज होत असतात सॅच्युरेशन त्यावेळेस, this is explaining or this is proving the magnetic moment of neutron in spite of the fact that neutron carries no charge. मतलब क्या हम बोलते हैं कि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है. न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल इन नेचर, बट जैसे कि हम मतलब पृथ्वी ने क्या खुद की तरफ घूमते घूमते सूरज की तरफ सूरज की और भी घूमती है. मतलब म्हणजे मराठीत सांगायचं झालं तर पृथ्वी जशी अर्थ जैसे खुद की तरफ घूमती है, वैसे ही खुद की तरफ घूमते घूमते वो सूरज के और भी या फिर सूरज के क्या बोलते उसके चक्कर लगाती है. म्हणजेच आपण मराठीत त्याला परिवलन म्हणायचो. येस और नो? Yes, ma'am. येस और नो? Absolutely मी yes. जरा जास्त बोलले का? सॉरी, आय जस्ट गॉट टू नो मी खूपच स्पीड घेतली वाटतं. यू गाइज आर क्लिअर ना अप टू दिस? येस, हो ना? ओके. सो हॅलो हॅलो हॅलो. मॅडम मस्त क्लिअर आवाज येत आहे, काही टेन्शन नाही. हा, ओके. सो सॉरी, येत आहे म्हटलं. ओके ओके, नो इश्यूज. सो ये जो कुछ भी अब हमारा आयन है, ये आयन न्यूट्रॉन जब हम बम्बार्ड करते हैं आयन पे, तब क्या होता है? उसका जो कुछ भी मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी होती है, ये मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है. दिस इज प्रूविंग दैट ये जो कुछ भी न्यूट्रॉन्स होते हैं, हम बोलते हैं कि उनको मतलब कि उनका जो कुछ भी न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल इन नेचर होते हैं. पर वो जब एक्शन में आते हैं, तब क्या होता है? At that time, whatever these neutrons are there, these neutrons are showing you a magnetic property. Which property, beta? Magnetic property. What is mean by magnetic property? What is mean by magnetic property? Simply whatever this magnetic property is there, this magnetic property is giving rise to give you simply the spin, is giving rise to give you the simply spin. मतलब कि ये जो कुछ भी n होगा उसको अब मैं m लिख दूं के, हाँ, तो आप समझ जाओ यम मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट. अब ये मैग्नेटिक मोमेंट बोले तो क्या? जब आपका न्यूट्रॉन खुद की तरफ घूमता है, जब आपका न्यूट्रॉन समझ लो ये आपका एक सर्कुलर पाथ है, ये आपका न्यूट्रॉन है. अब ये न्यूट्रॉन क्या करता है? परपेंडिकुलर वेव में घूमते ही रहता है. और ये जब घूमता है, उसकी तरफ खुद की उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है. अच्छे से सुनो बेटा सब लोग, क्योंकि ये जो बेसिक है ना, मैं मतलब अभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या फिर मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ही अप टू डेट वर्ड टू वर्ड नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ डिटेल में ना हमें सॉरी नेक्स्ट सेम में हमें बहुत ज्यादा डिटेल में ऑल दिस थिंग्स वी वांट टू लर्न इन एनएमआर. and also in the next sem, that is in your MSc third semester, you have to you will learn obviously the inorganic spectra NMR again. So physical spectra में भी NMR पढ़ने वाले हो, और
और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रम में भी। फिर अब मैं यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ समझा रही हूँ कि ये जो कुछ भी न्यूट्रॉन्स है तो ये न्यूट्रॉन्स को मैग्नेटिक मोमेंट प्रॉपर्टी आती है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट प्रॉपर्टी कैसे एक्सप्लेन होती है, अच्छे से सुनो और एक बार से प्लीज सब लोग, क्योंकि मेरा फ्लो थोड़ा ज्यादा हो गया था प्रीवियसली, इसीलिए मैं थोड़ा सा लिटिल बिट मेरी जो स्पीड है वो कम करके बताती हूँ। ये जो कुछ भी न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स जब स्कैटर होते हैं मतलब कि बम्बार्ड करते हैं हम हमारे आयन पे, तब ये जो बम्बार्डमेंट होती है न्यूट्रॉन्स की हमारे आयन पे, तब उसका जो कुछ भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। तो आप ये जो कुछ भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है कितने परसेंट से होती है? 10% से डिक्रीज होती है। एंड ये क्या हमें प्रूव करती है कि हमारा ये जो कुछ भी आयरन है तो ये आयरन मैग्नेटिक मोमेंट, ये आयरन की ये 10% से सैचुरेशन पॉइंट डिक्रीज, मैग्नेटाइजेशन वाला सैचुरेशन पॉइंट 10% से डिक्रीज होना, ये हमें प्रूव करता है कि हमारे इन न्यूट्रॉन्स को, किसको? हमारे इन न्यूट्रॉन्स को क्या बोल सकते हैं हम, उसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। सॉरी सॉरी, उसको एक मैग्नेटिक मोमेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट बोले तो क्या, एक आधी टर्म, कोई भी टर्म, हाँ वो न्यूट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, कोई या फिर कोई भी टर्म हो, जब वो घूमती है एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में, तब क्या होता है, वो जब घूमते रहती है, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बोलते थे इन एनएमआर, आप लोगों ने पढ़ा है बीएससी थर्ड ईयर में फिजिकल स्पेक्ट्रा में, एनएमआर में क्या पढ़ा था? देयर इज अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गाइस? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोले तो दूसरा तीसरा कुछ नहीं, वो जब आपके एंटिटी या फिर ऑब्जेक्ट, आई मीन टू से हियर स्पेसिफिकली, जब न्यूट्रॉन घूमेगा तब क्या होगा, उसको उसकी तरफ वो घूमते हुए उसका एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की उसको, और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जब आती है उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। और अच्छे से और डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेम में, क्योंकि अब उसकी एक्सेस यहाँ पे हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आप मुझे पूछोगे कि मैम ये जो कुछ भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है हमें समझ में आ गया कि आप बोल रहे हो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है तो होती है, बट उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? तो यस, हम वो जो कुछ भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट जो कुछ भी प्रोड्यूस होता है, तो वो मैग्नेटिक मोमेंट हम स्पिन की फॉर्म में देते हैं। किसकी फॉर्म में देते हैं? स्पिन की फॉर्म में। और उस न्यूक्लियाई को, आई मीन टू से उस न्यूट्रॉन्स को, उन न्यूट्रॉन्स को हाफ इतनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सॉरी उसकी स्पिन वो बताते हैं। क्या बताते हैं बेटा? स्पिन। इन न्यूट्रॉन्स को मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब अब वो घूमते हैं मतलब वो कौन सी तो भी दिशा में घूमेंगे, कौन सी तो भी डायरेक्शन में घूमेंगे, कौन सी तो भी मतलब पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर जहां पर भी मन करे वैसे नहीं। आई मीन टू से इन अ केमिकल लैंग्वेज, इन अ clockwise direction or in a anti-clockwise direction. Likewise, this when it is moving at that time, simply it can show you half its spin, half spin. And अब ये जो कुछ भी उसके हाफ स्पिन है, ये हाफ स्पिन आप लोगों को जो कुछ भी न्यूक्लियस होते हैं, ये जो कुछ भी स्पिन है, अच्छे से सुनो और एक बार मैं बोल रही हूँ, ये जो कुछ भी न्यूट्रॉन्स है, इन न्यूट्रॉन्स को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब जो वो खुद की तरफ घूमते हैं तब उसको एक मैग्नेटाइजेशन आता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें आती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है मतलब वो जब घूमते हैं तब वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें आती है, तब उसको हम बोलते हैं एक टर्म जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। एंड मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी एक्सप्लेन इन द बेस ऑन the basis or in the form that is nothing but s. What is mean by this s? S is nothing but the spin. S is nothing but the spin, and whatever the spin is there, the spin is half. The spin is half. फिर अब आप मुझे बोलोगे मैम ठीक है हम तो समझ गए ये जो कुछ भी न्यूट्रॉन है उसकी स्पिन हाफ है, बट ये जो स्पिन हाफ है उसका क्या लेना देना है मैम हमारे इस जो कुछ भी न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन है उसमें? क्या कुछ वो न्यूट्रॉन क्या हमें हाई करके ये जो कुछ भी स्पिन है उसकी हाफ, तो उससे कुछ लेना देना है क्या? ये जो हाई करके हमारा ये न्यूट्रॉन है, हाय व्हाट्सएप ऐसा वो बोलता है क्या? नहीं, वो क्या करता है, हमारा ये जो कुछ भी न्यूट्रॉन है, तो ये न्यूट्रॉन की जो कुछ भी स्पिन होती है, ये स्पिन मींस हाफ स्पिन इज इंटरैक्टिंग। यस सागर, आर यू लिसनिंग?
ये जो कुछ भी ये न्यूट्रॉन है जो तू मुझे कल पूछ रहा था वो पॉइंट है ये कि अब ये हमारा जो कुछ भी न्यूक्लियस सॉरी न्यूट्रॉन है तो इस न्यूट्रॉन की ये जो कुछ भी हाफ स्पिन है ना तो ये हाफ स्पिन ट्रीट होगी। ये हाफ स्पिन क्या होगी बेटा? ट्रीट होगी मतलब इंटरैक्ट होगी आई मीन टू से। अब ये इंटरैक्ट ये हाफ स्पिन जो कुछ भी होती है किसकी होती है? हाफ स्पिन न्यूट्रॉन्स की। ये इंटरैक्ट होती है हमारे स्टक न्यूक्लियस के साथ में, हमारे न्यूक्लियस के साथ में। और ये जो कुछ भी न्यूक्लियस के साथ में इंटरैक्ट होगी तब क्या होगा? स्कैटरिंग होगा, सब्सटेंसेस का स्कैटरिंग होगा। और ये जो कुछ भी न्यूक्लियर स्पिन्स होते हैं वो न्यूक्लियर स्पिन्स जो कि रैंडमली अरेंज होते जो कि रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, उनके जो कुछ भी स्पिन होते हैं। अब ये जो कुछ भी न्यूक्लियस होते हैं उनमें जो कुछ भी अब न्यूक्लियर ये हमारा ये सॉरी वेट ये जो कुछ भी न्यूक्लियस है वेट थोडस हॉटस्पॉट चालायते हाँ यस ये जो कुछ भी न्यूट्रॉन्स है तो ये जो कुछ भी न्यूट्रॉन्स है तो ये न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियाई के साथ में ये जो न्यूट्रॉन्स है तो ये न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियाई के साथ में इंटरैक्ट करेंगे। मतलब उनका जो न्यूट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इंटरैक्ट करेगा हमारे न्यूक्लियाई के साथ में, इंटरैक्ट करेगा जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो जो कुछ भी अब इस न्यूक्लियाई में स्पिन और स्पिन्स रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं। रैंडमली ओरिएंटेड मतलब कोई हाफ स्पिन मतलब प्लस हाफ हो सकती है किसी की, तो किसी की माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, ऐसे हमारे न्यूक्लियाई में सारे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ होते हैं। मतलब क्या कि जो कुछ भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयरिंग में हुन्स रूल क्या कहता है हमें? नोट टू इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये जो कुछ भी हुन्स रूल, अबू प्रिंसिपल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये तीन प्रिंसिपल हमें क्या बताते हैं? इलेक्ट्रॉन को कैसे कहाँ पे कितना कौन से एनर्जी से कैसे रखना है, किस ऑर्बिटल में रखना है, उनकी एनर्जी कैसे होगी, कौन कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल होगा, ये सब कुछ हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर से और ये सारे रूल्स पे से पता चलता है। तो अब ये रूल पे से पता चलता है तो ठीक है, पर ये जो कुछ भी अब न्यूक्लियाई है इस न्यूक्लियाई में जो कुछ भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ लो अब मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखती हूँ। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन समझ लो एक प्लस हाफ उसकी स्पिन है और दूसरे की स्पिन माइनस हाफ है। ऐसे ही रहते हैं ना हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो प्लस हाफ माइनस हाफ में हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन्स सॉरी इलेक्ट्रॉन्स अरेंज रहते हैं। तो ये जो कुछ भी हमारे न्यूक्लियाई है तो इनके साथ में ये जो न्यूट्रॉन्स की मैग्नेटिक मोमेंट इंटरैक्ट होगी, उसके साथ में ये जो रैंडमली ओरिएंटेड हमारे स्पिन के डिसऑर्डर्स रहते हैं उनकी जो कुछ भी स्कैटरिंग होगी। फॉर एग्जांपल अगर से हम हमारा हाइड्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजन ऑर्डर स्कैटरिंग देता है, या फिर हम ड्यूटेरेटेड कंपाउंड्स भी बम्बार्ड करते हैं न्यूट्रॉन डाइफ्रैक्शन में। मतलब क्या कि हम जो कुछ भी सोर्सेस यूज करते हैं न्यूट्रॉन डाइफ्रैक्शन के लिए तो हम हाइड्रोजन के सोर्सेस भी यूज कर सकते हैं, ड्यूटेरियम के भी सोर्सेस यूज कर सकते हैं। पर अब ये जो कुछ भी हमारे न्यूट्रॉन्स इंटरैक्ट हो रहे हैं ना यहाँ पर हमारे न्यूक्लियस के साथ में, तब की जो कुछ भी रैंडमली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट जो होती है तो उन अरेंजमेंट्स को अब ये जो कुछ भी उनके अरेंजमेंट्स होते हैं तो हम न्यूट्रॉन की डायफ्रैक्शन क्यों पढ़ते हैं, या फिर में ये जो कुछ भी हमारे न्यूट्रॉन्स है कि नहीं, ये न्यूट्रॉन्स किसके बारे में पता देते हैं या फिर किसके बारे में हमें क्या बोल सकते हैं हम इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को मतलब क्या बोलूं कि इरेज कर दूं क्या? पहले तो बोलो इतना समझ गए क्या? अगर समझ गए होंगे तो बहुत ही छोटा पॉइंट रह गया है। प्लीज टेल मी इन चैट बॉक्स, आर यू गाइस क्लियर? या फिर मेरी स्पीड अगर से मेरी स्पीड बढ़ रही है तो प्लीज यू कैन टेल मी दैट माय स्पीड इज गेटिंग इंक्रीज्ड। स्पीड वाढली का? नो मैम, ऑल इज फाइन. मैम ओके हाँ बोला। मैम एक क्वेश्चन. हेलो हाँ बोल बोल बोल। मॅम ते यस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस सोबत
स्टक न्यूक्लियस सोबत इंटरॅक्ट होतात, मग तिथे इलेक्ट्रॉन्सचे स्पिन सोबत ते कसं इंटरॅक्ट करतील? इलेक्ट्रॉन असा चुपचाप बसत नाही, बसला की आपल्यासारखा मठ्ठ. म्हणजे काय की इलेक्ट्रॉन्स आर दोज, ते तू तुझा म्हणजे ऍटम म्हण किंवा तुझे जे काही स्टक जरी न्यूक्लियस असलं तरी दॅट दोज इलेक्ट्रॉन्स आर रिव्हॉल्विंग इन देअर व्हॉट वी कॅन से इन इट्स ॲटम. म्हणजे ते डायरेक्शन मुवमेंट होतच असते. म्हणजे काय बघ, हे जे तुझे न्यूट्रॉन्स आहेत ना, वेन सॉरी हा सो वॉट एव्हर दिस युअर न्यूट्रॉन्स आर दियर ना, हे न्यूट्रॉन्सची जी काही मॅग्नेटिक मोमेंट आहे ना, तर ही न्यूट्रॉन्सची मॅग्नेटिक मोमेंट जेव्हा तुमचे हे न्यूक्लियस आहे ना त्यांच्या म्हणजे सानिध्यात येते किंवा त्यांच्या काय म्हणू मी त्याला वर्ड, वेन दे आर इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर ना, ऍट दॅट टाइम दे हॅव देअर ऍक्टिव्ह स्टेट. म्हणजे ते ऍक्टिव्हली काम करतात आणि मग ह्या त्यांच्या ज्या स्पिन इन ऑर्डर किंवा मग रॅन्डमली ज्या अरेंज होत होत्या ना, मग आता त्यांचं काय होतं माहितीये. तर तुझ्या प्रश्नाचं अजून एक उत्तर देते की हे जे काही न्यूक्लियाइज रहते हैं, ये न्यूक्लियाइज जब हमारे न्यूट्रॉन्स मतलब स्कैटर होते हैं हमारे इस स्टक न्यूक्लियस पे, तब क्या होता है उनका वो हमें इस न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन में एक्चुअली हम क्या डिस्टिंग्विश करते हैं. तो जैसे एक्सआरडी में हम स्ट्रक्चर ज्योमेट्री पता करते हैं, मतलब बॉन्ड लेंथ, यूनिट सेल, ये सब कुछ निकालते हैं, वैसे स्पेसिफिकली अच्छे से सुनो सब के सब, इस न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन में हमें अच्छे से मतलब कि हमारे जो कुछ भी मटेरियल्स होते हैं उनका नेचर, मतलब वेदर दैट मटेरियल इज पैरामैग्नेटिक, वेदर दैट मटेरियल इज फेरोमैग्नेटिक, वेदर दैट मटेरियल इज एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर हमें एक्सप्लेन करता है हमारा डायफ्रैक्शन पैटर्न. जो कि डायफ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन. विच इज दैट पैटर्न गाइस, न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन. दो दैट न्यूक्लियस इज स्टक्ड न्यूक्लियस, स्टक मतलब क्या, वो सिर्फ हमने क्या किया है, उसको प्लेस किया है, मतलब उस पर हम न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड कर रहे हैं. इसका मीनिंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा वो न्यूक्लियस इनएक्टिव है. न्यूक्लियस मतलब मुझे न्यूक्लियाई बोले तो क्या यहाँ पर पता है क्या, न्यूक्लियाई मतलब यहाँ पर उसका न्यूक्लियस विथ इट्स इलेक्ट्रॉन. जहां पर भी हम न्यूक्लियाई बोलते हैं तो वहां पर आप कंफ्यूजन मत करो. ये एनएमआर में आपको क्लियर हो चुका है और अगले 2 सेम में और अच्छे से क्लियर होगा कि ये जो कुछ भी न्यूक्लियाई जब हम बोलते हैं, NuClei, न्यूक्लियाई मतलब न्यू एटम विथ इट्स न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, जब वो ऐसे इंटरैक्ट होते हैं तब उसके स्पिन के साथ, उसके मतलब इस न्यूट्रॉन की प्लस हाफ स्पिन और इन हमारे स्टक न्यूक्लियस की हाफ स्पिन के साथ वो इंटरैक्ट होते हैं, और इसी इंटरैक्शन की वजह से तो फिर डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है. और डायफ्रैक्शन पैटर्न में जो कुछ भी हमारा मेजरमेंट टेक्निक्स एंड ऑल द arrangement, instrumentation, all these things are there na. So all these things we can explain very easily by, and what is the use of this neutron diffraction. It is nothing but simply to give whatever your materials are there, these materials, whether this material is paramagnetic or diamagnetic, not the diamagnetic, ferromagnetic or antiferromagnetic, this important one property which is regarding your material, and this property is explained by your neutron diffraction. Now I'm done with my explanation for scattering of your neutrons by solids and the liquids here, and whatever this your scattering phenomena is there, is it clear to you everyone? You can tell me. You can tell me in chat box, or you can tell me by unmuting yourself.